Hello, dear friends. A warm welcome once again to the International Fab Talks. My dear friends, it's a beautiful day out there, and we are all happy to be united together in peace and harmony. Dear friends, we have a wonderful celebrity with us today who's going to share the space with us and explain about various aspects, the most important aspects of life. He is none other than Dr. Pawan Sharma, the psychedelic. He's here to share his views, his thoughts, wisdom, and a vast experience which he has gained over through the years. And today we'd like to invite Dr. Pawan Sharma with us. Thank you, dear sir, for being a part of the International Fab Talks. Thank you. Thank you, sir. Dear sir, with your permission, I'd like to introduce you in an official way. May I do that, sir? Sure, please. Go ahead. Thank you, sir. Thank you. Dear friends, it's our duty and responsibility to share, the real official work of what our celebrity has been doing, is doing, and will continue to do for the others, and to influence the life of every member in the society. So I'd like to just share in an official way the life and the journey of Dr. Pawan Sharma, the psychedelic. He is the founder of the Progressive Universe of NLP. I repeat that, the Progressive Universe of NLP, that is PUNLP, in short form, a human development training. We are having, different developments for machines and technology, but here working on the whole human body, the human mind, and getting the person to understand the deeper thoughts and come back on the right track. So here, the human development training is one of the best trainings we've come across, called as the Human Universe of NLP. Or you could say the Progressive Universe of NLP, where Sir focuses on creating that beautiful space and rewiring your brain. And dear friends, he is into coaching and counseling. That is, he's into the coaching and counseling organization and the founder, I repeat this, the founder of Forgiveness Foundation Society. The day you start forgiving others, you're going to live a happy life. And so Sir has really focused on this and has created a beautiful foundation called as the Forgiveness Foundation Society, a registered society, an NGO, you could say a non-profit organization, an NGO working for awareness and to cure mental health issues. As I said, human development. So here, when you are focused on your mind, there is your development. And Sir focuses on bringing healthy mental thoughts or healthy emotional maturity levels in you. And that is it he is focusing. He is also the member of I'll just put that very right, member of the State Mental Health Authority Review Board, Uttarakhand. That's really very nice. So as I get to know more about Sir's profile, like I'm just in wonder, in awe. इतने सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप फिर भी डाउन टू अर्थ, हम्बल, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे. It is very nice. Yes. So I like to inform all the virtual audience. He is a member of the State Mental Health Authority Review Board in Uttarakhand. Apart from that, Dr. Pawan Sharma is an author. अच्छे भी लिखते हैं, लेखक भी है. He has been writing 5 books and he intends to write more books. One of the books here mentioned is Design Your Brain to be a Superhuman. So design your brain to be a superhuman in English and Gujarati. Apart from that, design your brain to spot a lie. कोई झूठ बोल रहे तो उसको पकड़ सकते हैं आप. तो डिजाइन योर ब्रेन, अंडरस्टैंड पीपल, आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो ये बुक पढ़ के आपको बहुत कुछ मिलने वाली है. तो डिजाइन योर ब्रेन टू स्पॉट अ लाई, द ह्यूमन लाई डिटेक्टर. And that's wonderful, sir. Very excellent. And in English it is. And then you have another book called as the NLP Kalpatru. It's written in Hindi. NLP Business Mantra, which is in Hindi, and Brain Galaxy in English. All these books were written by Sir, and he intends to write many more books to influence the life of every individual, not only in Uttarakhand, not only in India, across the world. And dear friends, we have more to our celebrity and guest. He has a little more information which he has shared with us, that he loves to empower people. Not only he wants to train and coach, he wants to empower the public, empower the masses. He has been empowering people for the last couple of years. He has, had the biggest exposure of changing lives of the people across the people in India and the world. Since 2007, he has conducted several brain mapping, motivation, and NLP workshops in the country,
in different states of India, across the world as well. A few states to mention in India is Varanasi, Kanpur, Dehradun, Gujarat, Mussoorie, Delhi, Gurgaon. He has addressed more than 15,000 people in his workshops, and they have many YouTube videos which have been passing across all Indian states, and it is, finding its journey across Indian borders, and other people from foreign countries have also viewed and developed a liking to Sir's profession and as well as his expertise. Dear friends, he has been continuously helping people from all professions and all walks of life. Someday on few days, he gets a chance to interact with kids who suffer from dyslexia, the learning disabilities. He helps them. He helps people suffering from allergies, different phobias, including obesity. Ask me how? Kaise sambhav hai? Through NLP. He is a master in NLP. And here, that is neuro-linguistic programming. And my dear friends, he has also been training teachers, or, teacher training courses, where he has trained teachers and students. And he has learned how the teachers and students should retain what the teachers have to teach in class, what the students have to put up in their examination papers. He enables them to do it very well, the complicated study material, the content, in a short span of time. He has that technique to help teachers as well as students to grasp, the large content in the small span of time. And he regularly is invited. बुलाते हैं सर को कि भाई आप आ जाइए हमारे schools में, colleges में. You give us the training sessions, you give us the workshops, and make our students, teachers, aware of how to become a better citizen. And dear friends, he's even invited to many of the corporate businesses. They invite him to train all the employees over there based on NLP and different, mental health awareness programs, emotional maturity. EQ is very important in the corporate sector, and our guest, our celebrity, Dr. Pawan, focuses on EQ for the corporate level. And friends, he has also been into this part of, journey where he has more than 15 years of experience in sales, marketing, business development, administration, and training. Apart from that, he focuses on human development. He has undergone a number of trainings in the last couple of years. He has enriched himself, trained himself, coached himself, and has become a power, an inspiration to all of us, and to deliver the finer points of NLP. And my dear friends, he has great knowledge in NLP, and he is applying it to various domains in life and in the society. Dear friends, I would like to add to this, Dr. Pawan Sharma, the creative NLP coach of India. He has developed and delivered a number of customized NLP modules like NLP workshops for wellness, NLP for students, for couples, corporate excellence, sales, team building, leadership, weight management, and of course, senior citizens, etc. There is much more to Sir and his workshops. That's really very nice. He's helping even new trainers to make their mark in the training field. ये तो बहुत अच्छी बात है, sir. Very nice. He wants not only खुद नहीं, सबको ले जाए. He would love to help other new trainers to come up and learn the skills of NLP and coaching and help the world to make, a beautiful place for everyone, to bring heaven on earth. That's really nice. I'd like to add a little more and then go back to our sir, such that we get to know more about him. Dear friends, while most of the coaches in India are incapable to create new approaches in NLP training effectively, and but here Sir focuses on creating those beautiful workshops which are authentic. बस नाम के वास्ते नहीं, सचमुच में उसमें दम है, उसमें एक कला है, और उसमें एक शक्ति है जो सबके जीवन में एक बदलाव ला सकती है. तो इस तरह के NLP कोचिंग वर्कशॉप्स जो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, जो आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा प्रभाव हो सकता है if you join or take up or come in contact with Dr. Pawan Sharma. And dear friends, he takes complete responsibility of training, the training modules, and of course the future support to all the participants. Training हो गए, बात खत्म. ऐसा नहीं कि भाई ट्रेनिंग के बाद में वो कनेक्टिविटी रहती है डॉक्टर पवन शर्मा के साथ. He will connect with you and get to know how are you doing. आपका प्रोग्रेस का भी he will keep an account of your progress. Lots of confidentiality भी maintain करते हैं. That is the mark of a great person, a great psychologist, and of course, a wonderful human being. My dear friends, to end it here, I would like to add, to check the simplicity of the delivery, depth of the NLP knowledge,
wide exposure and authentic approach of Dr. Pawan Sharma, you could either attend his demonstration seminars or invite him for a talk to your organization, or you could also talk to him personally, or you could even watch his YouTube videos. You can come up to him. He's very approachable. कि भाई हाँ, इस इंसान से हम बात कर सकते हैं बिना झिझक के, बिना डर के, बिना कोई फियर के. तो इसीलिए हम भी इंटरनेशनल फैब टॉक्स बिना झिझक के, बिना शर्मा के हम लोग इनविटेशन दिया. वी हैव गिवन हिम एंड ही हैज एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन. ऑल्दो वी आर अ स्टार्टअप, ही हैज गिवन अस दैट लव एंड सम्मान. सबसे बड़ी बात है सम्मान. तो सम्मान करके आज हमारे मंच पर आए हैं इंटरनेशनल फैब टॉक्स. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. शुभकामनाएं. थैंक यू. यू आर सच अ नाइस पर्सन कि भाई आप से एक वार्मथ है, एक अपनापन है. Yeah, so this is the greatest mark of a psychologist, and that's really very nice. Yes, sir. This is called humanity. Yes, sir. Thank you, sir. That's यही हमें ह्यूमन बनाता है ना. जी सर. जी सर, आप अपने बारे में अभी हम लोग आपके बारे में ऑफिशियली सब कुछ कहा. आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ कि भाई डॉक्टर पवन शर्मा कौन है? हाँ, जनरली आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं, आइडेंटिटीज मिलती हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो. बट एक्चुअली जब आप ह्यूमंस के साथ काम करते हो तो कोई भी एक आइडेंटिटी आपको कहीं पे ब्लॉक नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती. देर इज अ वास्ट एरिया कि आप कहीं पे भी लाइफ को कहीं सी भी जगह पे लोगों के कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो इट्स बेटर कि अगर आप अपने आप को अवेकनर के रूप में जानो तो ज्यादा अच्छा है. सच एज मैंने अपने नाम के आगे हमेशा कह रखा है कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम जस्ट एन अवेकनर. ऑलरेडी आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं उसको कैसे बेस्ट एफर्ट की तरह से यूज करूं और उसके बेस्ट रिजल्ट मिले. तो आई एम जस्ट अवेकनर कि मैं आपको अवेक करता हूं और आप अपनी पावर्स और अपनी स्किल्स को दोबारा से यूज कर सकते हो और उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इन द वेरियस लाइफ ऑफ एरिया. आप चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे पर्सनल में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे स्टूडेंट है एजुकेशन में, या आप टीचर्स हैं या स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी भी डोमेन और एरिया में हो वो एक्सेल आपको आसानी से मिल सकता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ऑन इनसाइड यू. आपके पास वो सारे पावर हैं, सारे टूल्स हैं. जस्ट नो, जानो, समझो और उसको यूज करो. वंडरफुल. यू आर एन अवेयरनेस कोच, अवेकनिंग कोच कि भाई आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई आप में शक्ति है, आप में वो बल है. यू आर दैट पर्सन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, राइट? दैट्स वेरी. बिल्कुल. आप ये कैसे कर पाते सर? आपका जो विधान है या आपका जो कोर्सेज है उसके बारे में बताइए. हाँ, डेफिनेटली. देखिए, कोई भी चीज आप कर रहे होते हैं तो आपकी पहली तो आइडेंटिटी, जो कि सेल्फ आइडेंटिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं किसी रोल के लिए या किसी काम के लिए. सच अगर एक स्टूडेंट है और वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं करता है तो वो अपने आप को एज एन अडल्ट या एज अ प्रोफेशनल या एज अ कह लीजिए टीनेजर बिहेव करता है, बट वो एज एन स्टूडेंट बिहेव नहीं करता. तो जैसे ही वो आइडेंटिटी लेता है और उस आइडेंटिटी में अगर उसका थोड़ा सा भी बिलीफ है या उस आइडेंटिटी को वो वैल्यू देता है तो नो डाउट उसका बिहेवियर, कैपेबिलिटी और एनवायरमेंट ये सब चेंज हो जाएगा. और मैक्सिमम देखेंगे तो आप जितने भी लोगों के साथ प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं वो होंगी उसके बिहेवियर से जुड़ी हुई. आइडेंटिटी को लेकर के पता नहीं चल रहा है, प्लस उसके साथ उसकी कैपेबिलिटी कि वो काम नहीं कर पा रहा है किस तरह से करे, और या फिर एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ. यानी एनवायरमेंट में अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इस जगह पे तो कुछ काम कर नहीं सकता, या मैं रह नहीं पा रहा हूँ, या मैं यहाँ पर एक्सेल नहीं कर सकता. और जितने भी ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे बिहेवियर से, कि ये आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये लोगों से बात ठीक से नहीं कर रहा है, या अगर ये कह लीजिए कि वो अपने आसपास माहौल बड़ा मेस बना रखा है. तो हम लोग जब भी काम कर रहे होते हैं ये रिएक्टिव जोन पे कर रहे होते हैं. दीज आर द रिएक्टिव जोन, जो आपका बिहेवियर है, कैपेबिलिटी है, एनवायरमेंट है. बट इसका जो रूट कॉज है वो आपके पास आता है आइडेंटिटी से, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है. जैसे ही आप एक प्रोफेशन के साथ या एक रोल के साथ आइडेंटिफाई करते हो, नो डाउट आप उससे जुड़ा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हो. जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर आइडेंटिफाई करता है कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप देखेंगे वो तुरंत जोन में चला जाता है और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह से काम करना शुरू करता है. और वही स्पोर्ट्स पर्सन अगर घर में आकर के एक बेटा बन जाता है तो शायद वो घर वालों के लिए एक गिलास पानी भी नहीं उठा करके देता है या घर के किसी कामों में हेल्प भी नहीं करता है.
बट स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए वो पूरे मैदान में जाकर के पसीना भी बहाएगा, मेहनत भी करेगा, सारे काम करेगा, जस्ट टू रिलेट विद दिस आइडेंटिटी। और उस आइडेंटिटी में उसका कितना बिलीफ कि वो अपने को उसके साथ जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है। तो जैसे ही वो उसके साथ जोड़ता है, नो डाउट उसका बिहेवियर भी बदल जाता है, उसका एनवायरनमेंट भी बदल जाता है, और उसी तरह से उसकी कैपेबिलिटी भी बदल जाती है। लोग जिम में जा करके इतना सारा वेट एक्सरसाइज करते हैं, और वो रोज चैलेंज करते हैं कि मैं कल से ज्यादा वेट उठाऊंगा, अब और ज्यादा रेपिटेशन करूंगा। बट अगर हम उसको ऑफिशियल काम बोलें कि ऑफिस काम आपको कल से थोड़े से ज्यादा करने हैं, या आपका थोड़ा सा असाइनमेंट बढ़ गया है, तो वहीं पर वो विड्रॉ कर देता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। बिकॉज वो उस रोल के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। वो जैसे ही अपने आप को माचो फील करता है, जिम में जा करके वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट ट्राई करता है उठाने के लिए, या उसके साथ ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन निकालता है। बट अगर वो प्रोफेशन में या स्टूडेंट की तरह से अगर कहें कि वो ज्यादा पढ़ाई दे या टाइम कर ज्यादा लगाए पढ़ाई में, तो वो अक्सर आप देखेंगे वो थोड़ी देर में सो जाएगा, या बोर्डम हो जाएगा उसको, और या जो उसने पहले याद करा है वो सब चला जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि जब भी कोई पर्सन होता है उसकी आइडेंटिफाई, जो कि सेल्फ आइडेंटिटी को किस आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है, उस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, और जो वो चाहता है उस आइडेंटिटी को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। देन उसमें बिलीव और वैल्यू पैटर्न्स जो उसके ऑलरेडी पड़े हैं, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको चैलेंज करते हैं और उनको ऑल्टरनेट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो फिर नए बिलीफ्स इम्प्लांट करते हैं, ताकि पुराने बिलीफ्स जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहें कि अनरिसोर्सफुल है, तो हम वो रिसोर्सफुल बिलीफ पैटर्न्स और वैल्यूज इम्प्लांट करते हैं। तो नो डाउट एक पर्सन जैसे ही वो बिलीफ और वैल्यू को लेता है, उसका बिहेवियर, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो जाता है, और वो इमीडिएट वे में रिफ्लेक्ट करने लगता है एक नए पर्सन की तरह से। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी सी आपने समझा दिया हमको कि भाई यू हैव टू हैव आइडेंटिटी, बिलीफ सिस्टम, है ना? इट्स वेरी नाइस। जी। दैट्स रियली नाइस। सर, अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं बार बार, क्रॉनिक डिजीजेस बिल्कुल से सफर होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है समाज में, क्यों बार? इससे पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल 21st सेंचुरी में देखे, अभी अभी यू सी मेनी ऑफ देम यंग पीपल 30s 40s जी। में भी हार्ट अटैक से मर जा रहे थोड़े लोग। तो ये सब बहुत क्यों है? बहुत। आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके जो नॉलेज के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू शेयर विद अस? देखिए, जो ह्यूमन पैदा होता है, हम लोग जो पैदा होते हैं वो टोटल टोटल वेलनेस के साथ पैदा होते हैं। हम स्वस्थ रहने के लिए ही पैदा होते हैं। बीमार अगर हम पड़ते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ स्टाइल के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो स्टेट है, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो अच्छी स्टेट में रहने के लिए काम करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, खेलने जा रहे हैं, तो एक अच्छी स्टेट गेन करने के लिए। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो एक अच्छी स्टेट में रहने के लिए। अगर आप दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, तो एक अच्छी स्टेट पाने के लिए। तो ये स्टेट गेन करने का चैलेंज हमारे लिए रोज और हर वक्त होता है, और हर मोमेंट में हम एक दूसरी शिफ्ट करते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। अभी अच्छा लग रहा है, अभी 2 मिनट के अंदर हमें दूसरी स्टेट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट जो होता है हमारा, ये स्टेट को बैलेंस करने के लिए होता है, और इस स्टेट को हंगर हम करते हैं कि नई नई स्टेट हमें चाहिए। तो जो इलनेस है, ये हमारी एक स्टेट है। कभी भी कोई भी पर्सन इलनेस से वेलनेस की तरफ तुरंत शिफ्ट कर सकता है, और वेलनेस से इलनेस की तरफ भी तुरंत शिफ्ट कर सकता है। जस्ट उसको अपनी स्टेट को अल्टर करना होता है। तो जैसे ही वो स्टेट लेता है कि यस मैं ठीक हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, वो तुरंत ही देखेंगे वेलनेस में आ जाएगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा अपने माइंड सेट को नेगेटिव ले जाता है या ड्रॉप डाउन करता है, इज गोइंग टू वेलनेस। तो इलनेस के हिसाब से ही आप जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो भी चीजें बैलेंस कर रही हैं, उसको आप जैसे ही कमांड करते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में वैसे ही चीजें ट्रांसमिट दिखती रहती हैं। हमारा मेडिकल साइंस भी ऑलरेडी ये बात प्रूव कर चुका है कि हमारी ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस, याद रखिए ऑलमोस्ट ऑल, इंक्लूडिंग सर्जरी, दीज आर द साइकोसोमेटिक। तो साइकोसोमेटिक का मतलब ये होता है कि वो इलनेस जो हमारे साइको यानी ब्रेन से शुरू होती है, और सोमा मीन्स हमारी बॉडी, इसमें अकर होती है, इसमें दिखती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो साइको में जो हमारे पास इश्यूज चल रहे होते हैं, वो इश्यूज अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, और वो बार बार हमारे लिए ट्रबल दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उन सारे इश्यूज को अपने पास ना रख करके हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। वो कहता है ये हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज हो गए, नाउ अब मैं इसको हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ,
आई एम ट्रांसफरिंग इट टू माई बॉडी। तो वो बॉडी के जिस भी कमजोर पार्ट को आइडेंटिफाई करता है, वो उस ऑर्गन से रिलेटेड जगह पर वो ट्रांसमिट करता है। तो उस ऑर्गन पे हमारे पास तुरंत इलनेस चालू हो जाती है। अगर आप फिजिकल पेन की भी बात करें तो वो सारे न्यूरोटिक है। अगर आप थकान जैसी बात करें तो थकान एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है। इसी तरह से अस्थमा हो गया, चाहे वो डायबिटीज हो गई, शुगर जिसको कि आप कहते हैं कि थायराइड हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं मैक्सिमम इनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब ही ये हो जाता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम यानी जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाए। और जब अगेंस्ट काम करने लगता है तो इट्स लाइक अ कर्फ्यू टाइप ऑफ फीलिंग, कि कर्फ्यू लग गया है और वो जो भी कोई दिखेगा उसमें वो एनिमी और फ्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो ऐसे डिस्ट्रॉय करने में वो सारे अपने बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और मेडिकल साइंस में भी ऐसी सारी बीमारियों का सिर्फ ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं, ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास इस तरह की कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज लग गई है तो आपके लिए एक पेंशन बन गई है कि आप अब दिन जिंदगी भर वो दवाइयां खाते रहिए और चलते रहिए, सिर्फ उसको थोड़ा सा सप्रेस करते रहिए। आप ट्रीट नहीं, आप क्योर नहीं हो रहे हैं। आपकी बॉडी जो भी केमिकल इम्बैलेंसिंग कर रही है, आप जो भी केमिकल बाहर से ले रहे हैं मेडिसिन के फॉर्म में, वो सिर्फ उसको सप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल ये इस तरह से कह लीजिए जैसे कि पेन किलर दवाई होगी, कि आपकी बॉडी में कहीं पे इंजरी है, चोट लगी हुई है, बट जब आप पेन किलर खाते हैं तो आपको वो पेन नहीं पता चलता है, बट इंजरी इज स्टिल देयर। तो जैसे ही वो पेन किलर का असर खत्म होगा, वो पेन फिर से चालू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जो इश्यूज हमारे लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं या क्रोनिक डिजीजेस बने हुए हैं जो कि बहुत लंबे समय से हमारे साथ चली आ रही है, उससे जुड़े हुए इश्यूज, जो अनरिजॉल्व इश्यूज हमारे ब्रेन में पड़े हुए हैं, हम उनको सॉल्व करें तो नो डाउट हम वेलनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत खूब आपने कहा सर, वेरी नाइस, मुझे भी नहीं मालूम था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई टू डोंट नो, तो मैं भी वंडर हो रही थी। इट्स वेरी ट्रू। यू थैंक सेड यू। साइकोसोमैटिक, एंड ऑटो इम्यून डिजीज यस, के बारे में ये सब। वेरी नाइस। बिल्कुल। Thank you so much, my dear friends. There's a lot to benefit from this, beautiful platform where Sir is sharing such great content, make you to understand why your body suffers. Because if your brain is really, disturbed and cannot take in that much of stress, it sends it out to your body, and then that's how you start developing different sicknesses. अलग अलग तरह की बीमारी और परेशानियां start हो जाएंगे. The mind will affect your body. So stay safe, dear sir. यस, एक्चुअली ये मान लीजिए कि जो ये बीमारियां आपके पास जब भी आती हैं, इट्स मेकिंग एन अलार्म। ये तुरंत आपको अलार्म दे रही हैं कि देयर आर सम काइंड ऑफ अनरिजॉल्व इश्यूज व्हाट यू आर हैविंग विद यू। जैसे अगर आप बहुत आसान सा तरीका देख सकते हैं कि जब आप एग्जाम में जाने वाले होते हैं या इंटरव्यू में जाने वाले होते हैं, यू आर स्टार्टिंग वरी, आपको थोड़ा परेशानी शुरू होने लगती है। और जब आप सोचिए जैसे ही वरी होती है तो आपके साथ क्या इशू होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपका मैक्सिमम टाइम टॉयलेट में बीतता है। इसी तरह से जब कभी आप थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, परेशानी होने लगती है, यू स्टार्ट बिकम स्वेटिंग, आपकी पल्स रेट बढ़ रही है, हार्ट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है। दिस इज ऑल इंडिकेटिंग कि देयर आर सम इश्यूज जो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। प्लीज उसको सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो प्लीज इसको लेट इट गो करिए। और जैसे ही आप लेट इट गो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगी, और तुरंत ही आप इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव कर जाएंगे। Wonderful, sir. Wonderful. Very nice. When you said this, no, when you're worried, exam stress or whatever's the stress, your यस, digestive system, first effect हो जाती है. Yes, that's very true. डेफिनेटली। हमारे साथ भी बहुत बार हो चुका है, कुछ स्ट्रेस ले ली बिल्कुल है होता ना, तो हो जाती, वॉशरूम में, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम एंड कम, लाइक है। यस, yes, very true. I experienced that. Very true. So you have to come from, illness to wellness. Let go. डेफिनेटली। Yes, rewire your brain, let go all the stress, and sir will help यस, you to let go it in the right way. If you connect with Dr. Pawan Sharma, he knows the right technique, डेफिनेटली। the right method. He will lead you on the path of success and good health in mind and in body. Dear sir, बिल्कुल। thank you sir, thank you very much. Dear sir, ऐसा देखा है कि भाई आजकल बहुत सारे डाइवोर्स केसेस, ब्रेकअप्स, अनबन, फैमिली में भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी हो रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
और कारण तो है ही है, आपकी आप भी हमें शेयर कीजिए, व्हाट आर द रीजंस अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं या नहीं, एक रिलेशनशिप को बचा सकते हैं या नहीं, किस हद तक रिलेशन में टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त करनी है। मैं पूरे क्वेश्चंस एक साथ आई एम पुटिंग इट, सो आई होप यू गिव That's why I'm listening. Yes. yes, yes, you just answer like what you feel is right to answer. Why are there so many बिल्कुल मैं breakups and in the relationships and marriages? Yes, यस मैं एक एक करके इश्यू उठाता हूँ जी, कि सबसे पहला तो मैं रिलेशनशिप का ले लेता हूँ। देखिए, हम जब भी कभी रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप में हम एक सर्टेन कुछ चॉइसेस देखते हैं शुरुआत की, और उसको हम अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं। और आप शुरुआत में देखेंगे तो दोनों साइड्स में जो भी रिलेशन की दोनों पार्टीज हैं, वो शुरू के 3-4 महीने तक अपने आप को अच्छा 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 अच्छा, जो भी उनके पास बेस्ट बिहेवियर होगा, जो बेस्ट एटीट्यूड होगा, वो ही सामने वाले को हम शो करते हैं, अपनी बेस्ट चॉइसेस दिखाते हैं, बेस्ट अचीवमेंट्स दिखाते हैं। और तब हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, या कह लीजिए कि हम अट्रैक्ट होते हैं, और तब हम एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं। और फिर जब आप उसके साथ ज्यादा रहना लगते हैं, तब हमें बिहाइंड द सीन कह लीजिए कि हमें बाकी और एटीट्यूड भी पता चलने लगते हैं कि हाँ, अगर इसमें ये अच्छा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी चीजें भी हैं जो शायद हमें बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली उसको मैं बुराइयां नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो अकॉर्डिंग टू मेरे सही नहीं है, वो मेरे बैलेंस में नहीं आती है। तो अब आप ये करते हैं कि जब भी कभी आप किसी के साथ जुड़ते हैं, तो उसके ऊपर अपनी एक ओनरशिप सी महसूस कर लेते हैं कि आई एम ओनर ऑफ। आप उसके ओनरशिप को लेकर के जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग फॉर सजेशन, इट्स गोइंग फॉर एग्रेशन। और कहीं ना कहीं वो कंप्लेन्स के रूप में आती है। तो जब कंप्लेन के रूप में आप किसी को बोलते हैं, तो सामने वाला तुरंत अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाता है। वो तुरंत आपको बताता है कि नहीं, ये मेरा बिहेवियर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, आपके अकॉर्डिंग चाहे जैसा भी हो। तो वहां पर हमारी ईगो क्लैश होती है। और जो भी बिहेवियर होता है, इट्स डिपेंड ऑन वैल्यूज। अगर मैं आपसे सिंपल सा कहता हूं कि एक लड़का है जिसको अपनी फैमिली के लिए एक लेडी चाहिए, जो कि उसके नौकरी पे जाने पर या बाहर जाने पर उसके घर को थोड़ा सा देख सके, उसके पेरेंट्स को देख सके, या उसके घर की टेक केयर कर सके, तो उसका एक गोल है, दैट इज मैरिज, शादी करनी। वहीं एक लड़की है, और वो उस लड़की को आप देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलती है उसको, हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, और वो दबी दबी सी बंद बंद सी होती है। लेकिन उसने ये चीज देख रखी है कि दो लेडीज हु आर मैरिड, उनके पास कुछ पावर ज्यादा है, दे आर द डिसीजन मेकर। वो अपनी तरफ से कुछ चॉइस कर सकती हैं। और हाँ, उसको ये भी पता है कि जब वो किसी रिलेशनशिप में आती हैं, तो जो उनका बॉयफ्रेंड है, वो उसके नखरे थोड़ा सा उठाता है, और चाहते ना चाहते हुए भी वो उसकी बातों को थोड़ा सा हाईलाइट करता है। तो शी सेड कि यस, दिस इज द ग्रेट वे, कि मैं जहां घर की फैमिली बाउंडेशंस पे रुकी हुई हूँ, मेरे पास लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज हैं, मैं अपने मन की चीजें नहीं कर पाती हूँ। आई वॉन्ट सम फ्रीडम, आई वॉन्ट सम एक स्पेस जिसमें मैं कुछ ज्यादा काम कर सकूं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैरिज। तो यहाँ पर लड़का जिसका गोल है मैरिज, लड़की जिसका गोल है मैरिज, दोनों का गोल मैरिज है, दोनों मिले और दोनों एक ही गोल की तरफ चल दिए। बस दोनों के गोल का पर्पज अलग हो गया। दोनों जैसे ही शादी करेंगे, नो डाउट आप समझ सकते हैं, लड़के की एक्सपेक्ट ये होगी कि वो अपनी फैमिली को देखने के लिए अपनी वाइफ को बोलेगा, और वाइफ कहेगी मैंने देख लिया, मैं घर में बहुत बंधी रही हूँ, अब तो मुझे फ्रीडम चाहिए, अब तो मुझे राइट चाहिए, अथॉरिटीज चाहिए। तो नो डाउट उसके बाद एक दूसरे से झगड़ा होना जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है जिसमें शादी से पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं। जब कुंडली मिलाते हैं, उसमें कहा जाता है गुण मिलते हैं। तो गुण मिलने के बाद भी अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, या इवन एक दूसरे को वो मारने को तैयार हो जाते हैं, तो ये बात गुण की नहीं है, ये बात होती है हमारे थॉट्स की, हमारे विचार नहीं मिले। तो पहले बात कहा जाती थी कि हमारे यहाँ मतभेद होता है। मत का मतलब होता है कि हमारा व्यू और तुम्हारा व्यू दोनों अलग है। आज ये मतभेद से मनभेद हो गया कि आई एम टोटली डिटैच फ्रॉम यू, मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूं। और उसके बाद वो जितना भी ज्यादा देखिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इट्स इमोशन लाइक अ पेंडुलम। एक पर्सन अगर आपको
सिंपल सा देखिए, बैलेंस है तो एक दूसरे के साथ जुड़ा है। लेकिन अगर वो एक तरफ बहुत सारा प्यार करता है और उसके साथ हम अगर कोई नुकसान करते हैं, तो नो डाउट ये पेंडुलम हेट की तरफ भी उतना ही ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए हम कभी ये हमेशा सोचते हैं, यार इससे तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता ना, ये मेरे लिए इतना बड़ा डैमेजेबल कैसे हो गया, ये मुझे इतना डैमेज करने वाला कैसे हो गया। क्योंकि नो डाउट वो जितना प्यार करता था वो उतना ही नुकसान भी करने वाला है। तो इसको बैलेंस रखना एक बहुत जरूरी बात होती है। अदरवाइज हमें चोट और परेशानियां वहां से मिलती हैं जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और यही चीजें कहते हैं ना कि हम लोग के पास अगर विश्वास है तो विश्वासघात भी वहीं पे हो जाता है। तो ऐसी मास्टरी के लिए जो ओनरशिप होता है, उस ओनरशिप को प्रूफ करने के चक्कर में हमारे रिलेशन एक दूसरे के साथ खराब होते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारा कम्युनिकेशन सॉल्यूशन के लिए नहीं होता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए होता है कि हम ज्यादा बड़े हैं या दूसरा ज्यादा बड़ा है। और इसको फिर हम कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए, अभी तक तो वर्बल चल रहा था, जब वर्बल नहीं होता है तो नो डाउट हम फिजिकल पावर पे आ जाते हैं। और फिजिकल पावर में एक ही चीज मानी जाती है कि जिसने ज्यादा जोर से मार दिया और सामने वाला गिर गया, तो यट मीन्स आप जीत गए। तो इस तरह से हम कई बार फिर वर्बल जब टॉक में जीत नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिजिकल इंजरी पहुंचाना शुरू कर देते हैं, फाइट करते हैं या मारते हैं या किसी और तरह से परेशान करते हैं सामने वाले को, ताकि हम अपनी जीत ज्यादा दिखा सकें। तो अब वहां पर देखेंगे कि आप मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हो जाते हैं। चाहे भले ही एक्ट बन चुके हों, कानून बन चुके हों, कई जगह प्रिविलेज भी हैं, कई जगह मॉनिटर करा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें अकर होती हैं। और जब ये फैमिली में होती हैं तो नो डाउट रिलेशनशिप तो खराब होता ही है, हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये चीजें बहुत असर करती हैं। बिकॉज वो चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसा होता है उनके लिए जो पूरी लाइफ को परेशान करता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब एब्यूज करते हैं तो वो एब्यूज फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, और कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। क्योंकि ये एक तरह से ये कह लीजिए कि जो कल्पित होता है वो ये सोचता है कि मैं इसको जान से तो नहीं मार पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी प्रेस्टीज, इमेज, आइडेंटिटी को इतना हार्म कर दूं, इतना डैमेज कर दूं कि इज इट इज इक्वल टू किल। ये एक तरह से मारने जैसा ही हो गया कि मैं उसकी सेल्फ इमेज, सेल्फ प्रेस्टीज को इतना हार्म कर दूंगा, तो उसकी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और वो मरा हुआ सा हो जाएगा। सिर्फ बॉडी होगी, लेकिन उसका वो सोल और वो आइडेंटिटी या वो ईगो नहीं होगी। तो इस तरह से ये चैनल वाइज होता है। ये चैनल एक जगह से चलता है और दूसरे तक शुरू होता है। मैं हमेशा जितने भी नए कपल होते हैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ अलार्म रखें। वो अलार्म आपके लिए बड़ा आसान होता है। सच में मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ जब भी बात करता हूं तो मैं उसको आप कह करके एड्रेस करता हूं। तो जब भी कभी ऐसी बात हो कि जो मुझे उससे पसंद नहीं आ रही होगी, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मेरा जो आप होता है वो तुम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज द अलार्म। वहां पता चल जाता है समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, प्लीज चेक एंड करेक्ट। तो वो सामने वाला भी कर सकता है और वो अपने लिए भी कर सकता है। तो ऐसा फिलहाल अभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि अगर कोई और भी ऐसा चेक रखता है, चेक पॉइंट, तो उसको अलर्ट हो जाता है कि यस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, अब मुझे यहीं पे करेक्ट होना चाहिए। तो वो अलार्म हो जाएगा, तो नो डाउट चीजें डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगी। एक्सीलेंट सर, वेरी नाइस। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपने दिया। दैट्स, मैंने इतने क्वेश्चंस, आई पुट ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। दैट्स रियली नाइस, थैंक दैट्स यू। रियली वेरी नाइस। सो आई एम रियली अमेज्ड कि आपके पास इतना सारा नॉलेज है। आप है ना, इट्स लाइक अ हिडन जेम। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, रत्न, रत्न आई थिंक यू नो। रत्न कहते रत्न, हैं जी, या बिल्कुल। हिडन जेम यू आर। यू हैव सच अ लॉट ऑफ नॉलेज टू शेयर। जी सर, हमने एक्चुअली नॉलेज को मजा जी ये आता है कि जब आप उसको इतनी इजी लैंग्वेज में कहीं तक किसी के पास पहुंचा दें कि वो अंडरस्टैंडिंग हो हर एक के लिए इजीली, उसको आपके लेवल तक ना जाना पड़े, वो जी अपने ही लाइफ के हिसाब से समझ सके, तब आपकी उन सारी नॉलेज का फायदा है। जी अगर हम उस टर्मिनोलॉजी में या टेक्निकल जार्गन्स को लेकर के बात करेंगे, तो नो डाउट वो किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो जी इसको आम ऐसी भाषा में बता देना चाहिए ताकि हर एक को समझ में आए। जी जी। वेरी नाइस, थैंक यू सर सो मच, दैट्स वेरी नाइस। डियर सर, अभी एक बहुत दुखदायक सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे सुइसाइड्स हो रहे हर जगह, अमीर हो या बिल्कुल। गरीब, उम्र का कोई तो है ही नहीं। इट कुड बी अ स्टूडेंट, इट कुड बी यूथ भी हो सकते हैं,
कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो, हमने बिल्कुल। देखा कि भाई सुसाइड्स हर जगह हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा जी, है और इसको कैसे रोका जा सकता है सर? यकीन है। देखिए, सुसाइड हम लोग तब नोटिस करते हैं जिस दिन वो एक्ट होता है। असल बात ये है कि जिसने सुसाइड कमिट करा है वो उससे कई दिन पहले मर चुका होता है। क्योंकि जिस दिन उसके मन में ये आ जाता है कि आई एम वर्थलेस, मेरी लाइफ का कोई यूज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, या मैं किसी के लिए काम का नहीं हूं, मेरा पैदा होना ही वेस्ट हो गया, या उसके पास पर्पस नहीं है लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, दैट मीन्स उस दिन से वो खत्म हो चुका है ना। अब वो सिर्फ प्लान कर रहा है कि मैं इस एक्ट को कैसे करूं और किस दिन करूं। तो नो डाउट उसके सपोर्टिंग में जिस भी दिन कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, कोई हरकत हो जाती है, तो वो तुरंत जाकर के उसको रिस्पॉन्स कर देता है। देखिए, छोटी सी बात है, बच्चा मांगता है मोबाइल दिए, और मोबाइल मम्मी नहीं दे रही है या पापा नहीं दे रही हैं, तो सिर्फ मोबाइल देना एक ऐसी चीज नहीं है जिसपे कि कोई जाकर के अपनी फांसी का फंदा लगा ले या ट्रेन के आगे चला जाए। किसी को टीवी देखने से मना कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सुसाइड। एक्चुअली वो उससे पहले, बहुत पहले कमिट कर चुका है। वो एक्सप्रेस करने के लिए एक ट्रिगर मांग रहा था कि कब वो ट्रिगर मिले और कब मैं इसको तुरंत सामने हैपन कर दूं, ये तुरंत एक्टिविटी हो जाएगी और लेट इट्स फिनिश। और कॉज मेरे पे नहीं आएगा, कॉज उस पे आएगा जिसने ये बातें शुरू करी। तो सुसाइड के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने फाइंडिंग्स करी है, आज की डेट में हमारा यूथ, उसकी अपनी सेल्फ इमेज कहीं भी नहीं है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस में घूम रहा है। किस तरह से? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कुछ लाइफ गोल रखते हैं अपने पास और आपका कोई रोल मॉडल है, तो अगर आपका कोई रोल मॉडल है, मैं आपसे, आपके सामने ही आपके ऑडियंस से भी कह रहा हूं कि अपने रोल मॉडल को जरा एक विजुलाइज करके देखना चाहें तो देखिए कैसा लग रहा है। यकीनन आपको इस वक्त वो रोल मॉडल अच्छे से दिख रहा होगा, उसकी ड्रेस भी दिख रही होगी, कलर दिख रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि वो कुछ बातें कर रहा है तो आवाज भी बहुत साफ और शार्प सुनाई देती होगी। और अब मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ, जिस गोल को आपने अपना लाइफ का बनाया हुआ है, जिस भी आइडेंटिटी और करियर को आप बनाना चाहते हैं, जस्ट सी योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा, सर अंधेरा है, या मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर है। तो लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि आप दिन भर में सबसे ज्यादा अपने आप को देखते हैं, हर बार शीशे में देखते हैं, कहीं पे भी मौका लगता है तो खुद को देखते हैं, और बचपन से खुद को देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा अपने आप को विजुलाइज करके देखने की कोशिश करिए एज एन अदर अनदर पर्सन, तो आपको पास कोई भी रेफरेंस नहीं है, इट्स टोटली ब्लैंक। तो जब ब्लैंक है, तो वहां पर अगर कोई भी कुछ भर देता है, सच एज आपको वो ऐसे ही बातें बोल देता है कि आपकी वर्थ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, तो वो उस जगह पर फिलअप हो जाएगी। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी फैमिली के लिए आप वैल्यूएबल है। लेकिन जैसे ही आपको कहता है कोई कि नहीं, आपका एक एग्जाम फेल हो गए और आपकी लाइफ का कोई भी वर्थ नहीं। एग्जाम आपका सिर्फ एक 3 घंटे का टेस्ट था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि आपने उसके अकॉर्डिंग ना मार्क्स लाए हो या नहीं लाए हो। और उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट आपकी वजह से कि आपने उस एग्जाम में ठीक से क्वालिफाई नहीं करा। कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर, एक एग्जामिनर जो उस एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, आज वो अगर खराब मूड में आया है, उसके साथ कुछ हैपनिंग हो गई है लाइफ में दिन भर में, तो आज वो कॉपी जब चेक कर रहा होता है, तो वो हर जगह वो काटता है और नंबर कम कर रहा होता है। नहीं, ये नंबर काटो, इसको अब 5 नंबर से 2 नंबर देंगे, इसको 4 देंगे। इट्स, और जब टोटल देखेंगे तो आपको हो सकता है कि जो 100 नंबर में से 80 नंबर आने थे, अब वो आपके पास 60 आ रहे हैं। और वहीं अगले दिन यही टीचर, जिसकी लाइफ में कुछ आज अच्छा हुआ है, कुछ हैपनिंग अच्छी हुई है, और वो कॉपी चेक कर रहा है और देखता है, अरे ये बच्चा फेल होने वाला है, 33 मार्क्स में फेल हो जाएगा, मैं एक बार ना थोड़ा सा फिर चेक करता हूँ, इसको ना 2-3 मार्क्स और बढ़ा देता हूँ, तो इसको फेल ना करके मैं पास कर देता हूँ। तो उसका थॉट प्रोसेस कितना बदल गया है, एक कॉपी में कुछ और एक कॉपी में कुछ। लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है जाकर के आपकी लाइफ पे। तो रिजल्ट्स हमेशा आपके लिए एक छोटा सा टेम्परेरी फेज होते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपने क्या करा। और इसको इतना मैटर बना लिया जाता है कि लाइफ सेंटेंस बन जाता है। और लाइफ सेंटेंस बनने के बाद, जिसमें चूंकि हम हार गए हैं,
तो हार गए हैं, तो अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अगर आज स्टूडेंट्स की कोई लाइफ 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, तो नो डाउट अगर आप उससे पूछे कि आपकी उम्र कितनी होगी, तो वो शायद आपको जवाब देंगे 60 साल या 65 साल, 70 साल। तो उस स्टूडेंट को आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या कहते हो, बाकी की लाइफ कैसे जानी है, कहाँ है वो, अगर आज ही आप फुल स्टॉप लगा देते हो। तो हम उसको सोचने का कारण नहीं दे रहे। तो इस तरह की जो सेल्फ आइडेंटिटी अगर लॉस हो जाती है और लाइफ में जीने का पर्पस नहीं होता है, तो नो डाउट ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, और कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को वहां पे खत्म करने में हिचकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके साथ हमें फ्यूचर के गोल बनाने होते, फ्यूचर के व्यू बनाने होते, फ्यूचर की इमेजेस बनानी होती है कि देखो तुम कल कितने अच्छे लगोगे, परसों कितने अच्छे लगोगे, या ये कर लोगे तो और ज्यादा अच्छे लगोगे, क्योंकि फ्यूचर के रेफरेंस गोल नहीं है उसके पास, फ्यूचर के कुछ एविडेंस नहीं है। होता क्या है कि हमारे पास पास्ट से जुड़ी हुई सारी चीजें वो हैं जो कि फेलियर हैं, नेगेटिविटी है, और वो फैक्ट है, क्योंकि वो मेरी हमारी लाइफ में हुई है। लेकिन अभी तक जो हम फ्यूचर के गोल बना रहे हैं, दे आर जस्ट इमेजिनेशन, उनके पीछे कोई रीजन नहीं है, वो डेफिनेट नहीं लग रहे हैं, वो इनफाइनाइट, वो बिखरे बिखरे से हैं। इसलिए हम आगे ना जा करके वापस पीछे चले जाते हैं, और वो पीछे की लाइफ हमें परेशान करती है। और जब कभी आपको इस तरह से कोई इशू बोले कि मेरा जीने में मन नहीं लग रहा है, मेरी लाइफ वर्थलेस है, मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन किस लिए था, दीज आर द अलार्मिंग साइन कि अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये शायद कुछ अपने लिए कुछ डैमेजिंग एक्ट करने वाला है। और आपको तुरंत पूछ लेना चाहिए, मरने की तो नहीं सोच रहे हो क्या? आमतौर पे हम लोग सुसाइडल टेंडेंसीज वाले या सुसाइडल थॉट वालों से ये नहीं पूछते हैं कि मरने की बात मत करो। हम लोग ये तुरंत कहते हैं, मरने की बात मत बोलो, ये मर जाएगा, मर जाएगा। जबकि साइकोलॉजी और ह्यूमन की वायरिंग ये बताती है ब्रेन की कि जब भी आपने ये पूछा है किसी मरने वाले से कि क्या मरने का इरादा तो नहीं है, क्या तुम मरने तो नहीं जा रहे हो, क्या अपनी जान देने तो नहीं जा रहे हो, वो उतनी बार वापिस आता है जिंदा होने के लिए। बिकॉज उसका सबसे पहला आंसर ये होता है, नहीं नहीं मैं मरने नहीं जा रहा, मैं जान नहीं देने जा रहा हूँ। ये उसकी साइकोलॉजी या ह्यूमन की ब्रेन वायरिंग पे इतना इम्पैक्ट करता है कि अगर वो आज सुसाइड करने जा रहा था, तो वो आज नहीं जाएगा, वो कुछ दिन रुक जाएगा, जब तक फिर डिजास्टर इतना ना बढ़े। तो ऐसा कह के हम किसी सुसाइडल पर्सन को बचा सकते Great, sir. Wonderful, sir. That's really nice. Thank you so much for sharing. My dear friends, you have to be very strong. You should not give up your lives. You have to face your lives and you live. Life is a gift. So we have to हैं। live यस and get connected with the world. There are many beautiful people out. In fact, sir, ऐसी एक बात है कि भाई अगर हमारे आसपास जो है जो लोग सही नहीं है, तो इसका मतलब जी, ये नहीं है कि पूरा दुनिया खराब है। अगर एक या दो या बिल्कुल 10 जने बुरे वाले मिल गए हमको, ये सभी बुरे हैं, तो इसके अलावा हजारों लाखों करोड़ लोग अच्छे लोग बाहर हैं, दूसरे लोग मिल जाएंगे हमें, जी, टू कनेक्ट एंड टू बॉन्ड विद, राइट। यकीन आप ये मानिए ना कि 7.5 बिलियन पीपल हैं ऑल द वर्ल्ड। जी अगर कोई 8% आपको गलत बोल रहा है तो दो इश्यू, हाँ उसके अकॉर्डिंग हम फिट नहीं है, जी लेकिन बाकी लोग तो और भी हैं, तो हमें बाकी लोगों का भी ध्यान देना चाहिए। जी 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 सर। जी सर, दिस अ नाइस क्वेश्चन नाउ सर। वी हैव पेरेंट्स, नए नए जो माँ बाप बने हैं, मम्मी और डैडी बने हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या टीनेज बच्चे भी हो सकते हैं, द पेरेंट्स, they are facing a lot of बिल्कुल। problems nowadays. So what do you think and what do you like to share आपके मन से कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे संभाले, किस बच्चों को किस राह पर लाना है, बच्चों के चैलेंजेस जो है, जो स्कूल इश्यूज भी है, या बच्चों का कोई बिल्कुल टैंट्रम्स रहते हैं कि भाई चिड़चिड़ करते हैं बच्चे कभी कभी, या तो आप इसके लिए कोई एडवाइस दे सकते हैं नए पेरेंट्स के लिए, फॉर द पेरेंट्स। बिल्कुल। जब भी हमारा पेरेंट्स से मुलाकात होती है या पेरेंटिंग वर्कशॉप होती है, मैं आपके माध्यम से बाकी जितने भी ऑडियंस हैं उन सबके सामने ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि हम उनसे एक ही चीज पूछते हैं कि आपने पेरेंट बनना प्लान करा है, और यू बिकम एन एक्सीडेंटल पेरेंट? तो मैक्सिमम जवाब ये आता है हमने प्लान कर रखा है। बट नो डाउट उन्होंने प्लान नहीं कर रखा होता है, दे बिकम एन एक्सीडेंटल पेरेंट, वो गलती से बन गए हैं पेरेंट। और जब बन गए हैं, तो ये हो गया है सिंपल सा कि उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया है, लेकिन वो पेरेंट नहीं बन पाए, दे आर नॉट इन टू ड्यूटी, वो उस रोल में नहीं आ पाए। बिकॉज जब आप पेरेंट बनने लगते हैं, तो नो डाउट आपको एक होमवर्क करना पड़ता है कि पेरेंट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा।
आप एक छोटा सा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, आपको होमवर्क करने पड़ते हैं। अगर आप एक छोटा सा जानवर या पेट भी लाते हैं अपने घर में, तो आप उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क करते हैं। आप अपने घर का एनवायरनमेंट बनाते हैं, घर के लोगों को तैयार करते हैं, घर की चीजें और ऐसी चीजें रखते हैं, या कह लीजिए कि एनिमल्स के बारे में आप और सीखना शुरू करते हैं कि प्लीज हमें बताएं इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये किस तरह से बड़ा होता है, उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, कैसे हमें इसके साथ एक्ट करना है। तो ये सब चीजें तो हम लोग जानवर के लिए पूछते हैं, लेकिन अगर एक ह्यूमन पैदा हो रहा है तो क्या हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरत है। तो डिपेंड ये करता है कि जब हम पेरेंट बनने के एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यस वी आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट, उसी वक्त से हमें पेरेंटिंग की भी सेशन लेना शुरू कर देना चाहिए, होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए, अपने एंडल से पूछना चाहिए, अपने बड़े लोगों से पूछना चाहिए कि आपने क्या होमवर्क करा था, किस तरह से आप प्रिपेयर करते थे। इवन अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, और भी दूसरों के पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बिकॉज आपकी जनरेशन और नई आने वाली जनरेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप, और आने वाली जनरेशन नो डाउट आपसे बहुत सारा एडवांस है। तो उनके एडवांस होने के नाते जो उनके चैलेंजेस होंगे वो नहीं होंगे जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए हैंडल कर। उनके चैलेंजेस भी बहुत एडवांस होंगे। आपको उसके लिए बेटर होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखिए कि आपने अगर आज की तारीख में मोबाइल यूज कर रहे हैं, जबकि आपके सामने ही मोबाइल अभी इन्वेंट हुआ है, फिर भी आप उसके सारे फंक्शन यूज नहीं कर पाते आज की डेट में भी। लेकिन अगर आज अभी एक छोटे से 4 से 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो शायद बिना मेन्यू, बिना यूजर मैनुअल के पढ़े हुए सारा मोबाइल ऑपरेट करता है। बिना गेमिंग इंस्ट्रक्शन के वो पूरे गेम ऑपरेट करता है कि उसको पता है कौन से आइकॉन से जंप हो रहा है, कौन से आइकॉन से वो फायर कर रहा है, कौन से आपने नहीं सीखा है बट वो जा मालूम है। तो उसका कॉन्शियसनेस, उसकी लर्निंग आपसे बहुत एडवांस है, बिकॉज वो जेनेटिक लर्निंग के बाद आ रहा है। वो आपसे ज्यादा इवॉल्व है, वो आपसे ज्यादा नई रेवोल्यूशन है। तो नो डाउट आपको और ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि पेरेंटिंग बनने के लिए आपको सिर्फ बाहर की इधर उधर की बातें मत लीजिए, पुराने रेफरेंसेस मत लीजिए, आपको नया होमवर्क करना पड़ेगा। और एक्सीडेंटल पेरेंट्स से अच्छा है कि जब आप पेरेंट बन रहे हैं, डू सम होमवर्क। Yes. Thank you, sir. Thank you very much for giving the advice and suggestion for all the new parents. Don't become accidental parents. सोच समझ के प्लान करके you have become parents. और पेरेंट्स की ड्यूटीज भी हैं, सर ने बताया, डॉक्टर पवन शर्मा सर, टेक केयर ऑफ योर ड्यूटीज, डू योर होमवर्क एंड देन बिकम अ पेरेंट। डोंट बिकम डेफिनेटली। एक्सीडेंट पेरेंट्स। और उस नादान सा जीव या बच्चा को दुनिया में लाके उनको तकलीफ नहीं देना है। यस, यू शुड नॉट। बिल्कुल, यही सिंपल से कहते हैं ना कि वी आर नॉट प्लानिंग टू फेल, वी आर फेल्स टू प्लान। यस। तो हमारी पेरेंटिंग बनने का अगर हमने प्लान भी करा है ना, तो जी कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग ही फेल हो गई है। जी दैट्स व्हाई ये इश्यूज अकर हो रहे हैं। अदरवाइज हमारे पेरेंट बनने के लिए प्लानिंग सही हो जाएगी तो ये सारे इश्यूज आएंगे। जी 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 सर, हमने ऐसा भी देखा है कि भाई सेक्सुअल क्राइम, ये जो सेक्सुअल क्राइम हो रही है सिर्फ सोसाइटी में नहीं, घर के अंदर चार दीवारों में भी होती है। एंड बिल्कुल। इट्स नॉट ओनली इन द फैमिली, इट्स नॉट ओनली इन द सोसाइटी, जहां पर काम करते हैं वहां पर भी सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं। तो इसके कारण क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, आप जरा बता सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए ह्यूमन जो है अल्टीमेटली वो एनिमल से जुड़ा हुआ है। और एनिमल किंगडम में जब से ये हमारा सृजन हुआ है, यानी जब से इवॉल्व हुए हैं हम, एनिमल किंगडम में भी यही होता है कि जब भी कोई एक मेल, यानी एनिमल जिसका रूल चल रहा होता है, जैसे ही उसको कोई चैलेंज करता है, और चैलेंज करने के बाद एक दूसरा एनिमल, मेल एनिमल, उसके किंगडम पे राज करता है, तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उन बच्चों को वो मार देगा या खत्म कर देगा जनरेशन को, और अपने नई जनरेशन पैदा करता है। और किसी भी जेनेटिक या फीमेल्स के साथ सेक्स करने का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, इट्स इंडिकेटिंग पावर। वो सिर्फ पावर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आई हैव पावर ओवर यू। तो ये पावर दिखाने के लिए ही लोग कई बार सेक्सुअल अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे, ह्यूमन हिस्ट्री में, तो जितने भी इन्वेडर्स आते थे, कभी किसी राज्य पे हमला करते थे, तो इन्वेडर्स जब कभी भी किसी राजा को हरा देते थे, तो दे आर कैप्चरिंग देयर वाइव्स, देयर लेडीज। तो वो उस एरिया की वुमेन को पकड़ते थे, और वो वुमेन को लेने के बाद ही बता देते थे कि यस वी आर रूल।
हम रूल कर रहे हैं, अब हमारा कंट्रोल है। तो ऐसे ही चीजें हमारे पास में है हर एक इंसान के साथ, कि जब भी कहीं वो किसी के साथ पावर शो करना चाहता है, तो नो डाउट वो सेक्सुअल क्राइम करता है। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे फैमिली हो, वो सब जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और ये जो भी क्रिमिनल हैं वो ज्यादातर वो हैं जो कि सैडिस्ट, जो कहीं ना कहीं अपने लिए भी विक्टिम हुए हैं, कि उनको कहीं ना कहीं कुंठा, यानी गिल्ट है किसी चीज का, और वो गिल्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सप्रेस हो जाते हैं, और वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी ना किसी को विक्टिम बना लेते हैं, और उसके ऊपर ये सारी चीजें हरकत निकालते हैं। और घर में होना ये सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, बिकॉज घर का कोई भी बच्चा देखेंगे तो वो हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट होता है, और घर के लोगों पे हम कभी डाउट नहीं करते या शक नहीं करते। और ये हो जाता है कि जब कभी घर पे ऐसा होता है, तो कोई बच्चा अगर कंप्लेन भी करना चाहे तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि मुझे ही डांटा जाएगा, हमारे रिलेटिव को नहीं कहा जाएगा। जबकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट जब होते हैं, तो उसकी फैमिली में कोई ना कोई एक रिलेटिव ही होता है, और उस रिलेटिव के लिए वो एक सॉफ्ट और आसान टारगेट होता है, जिसके पास वो बार बार अप्रोच कर सकता है। क्योंकि बाहर अगर किसी के पास वो अटेम्प्ट करता है, तो उसके पास जाने के लिए उसको बहुत से बहाने बनाने पड़ेंगे, मौके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन घर वाले के पास मौके उसको आसानी से मिल जाते हैं। दैट्स वाई इसका सबसे ज्यादा विक्टिम हो जाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों को हम शुरुआत में कहीं ना कहीं गुड टच, बैड टच, या एक बाउंड्रीज नहीं सिखा पा रहे होते हैं, कि हमें किससे कितना जुड़ना है, कहाँ तक इन्वॉल्व होना है। तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो गलती कर जाते हैं, और उनको शायद उसका मीनिंग भी नहीं पता होता है कि जो उसके साथ हो रहा है उसका मीनिंग है क्या। क्योंकि वो या तो हमें बता सके कि हाँ हमारे साथ ये गलत हो रहा है, जब वो पता ही नहीं है, तो नो डाउट वो अननोइंगली भी वो इसके कल्पित बन जाते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि आप अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखाएं, और उनको सोसाइटी के कुछ रिस्ट्रिक्शन बताएं। और ये जरूर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को भी, कि अगर आपका बच्चा आपके किसी दोस्त, किसी रिलेटिव, या किसी भी नोन पर्सन के लिए ये बोल दे कि इन अंकल या इन आंटी का आना मुझे घर पे पसंद नहीं है, मुझे इनके साथ बैठना पसंद नहीं है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से योर फ्रेंड, रिलेटिव और कलीग्स, विच एवर, आप उससे तुरंत कहेंगे भाई हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे, हम नेक्स्ट टाइम घर पे नहीं मिलेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं उस बच्चे ने ऐसा इंसिडेंट फेस करा है, जो शायद आपको एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने आपको ये बता दिया कि मुझे इनके सामने ज्यादा देर नहीं रहना है। तो अगर आप अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, तो नो इश्यूज, चाहे वो जितना बड़ा रिलेटिव हो, जितना क्लोज रिलेटिव हो, या आपका जितना सीनियर कलीग हो, या कोई भी ऐसा हो जो आपका दोस्त क्यों ना हो, आप उसको घर पे लाना बंद कर दें, और उनके साथ आप बाहर अकेले में मिले, बगैर आपकी फैमिली के। थैंक यू सर, दिस इज अ ब्यूटीफुल सजेशन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक जब यू। आप ये बात कर रहे थे तो मुझे भी याद आया, जब मेरे बचपन में तो एक अंकल थे जो हमारे गाल बहुत जोरों से खींचते थे ऐसे, तो मुझे बस बिल्कुल, गाल खींचते थे लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो मेरे तो दे गिविंग यू सिग्नल, यस। हाँ, तो मुझे वो अभी याद आ रही कि भाई हम बताते घर में कि भाई अंकल से मुझे डर लगता क्योंकि ये हमारी चीक्स बहुत जोर से खींचते हैं, मुझे नहीं बहुत पसंद। तेज खींचते हैं, या बिल्कुल। तो दैट इज अ फ्लैशबैक फॉर मी नाउ व्हेन यू शेयर दिस, सो दैट्स रियली वेरी नाइस। एक्चुअली ये हर एक के पास होता है, कोई भी बचपन से जुड़ा ऐसा इश्यूज होता है ना, ये हमारी पूरी लाइफ में डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि वो इशू हमारे अनप्लेजर है, अनवेलकम्ड है। तो वो अनप्लेजर इश्यूज जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस में, हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, सब जगह वो हमारे लिए एक बैरियर बना देता है। और वो बैरियर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है, कि हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या खुद को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर जगह हमें कहीं ना कहीं लेट डाउन करता है। और वो लेट डाउन होना हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि आखिर वो इश्यू क्या था। अगर सोचिए कि आज इस टाइम में आपको अपनी उस बचपन की याद याद है, दैट मीन्स इट्स एग्जिस्ट इनसाइड यू, और वो कहीं ना कहीं आपको लिमिट करती है। कोई भी चीज आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो फिर से अलर्ट करके आपको, ब्रेन आपको रोक देता है कि दिस हैपेंस टू मी, आई डोंट लाइक दिस। तो इस तरह के आपके लिए बाउंड्रीज बनाता है वो, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गई है। और प्रोग्रामिंग आपने अननोइंगली, नोइंगली लर्न कर ली है। द लर्न पैटर्न इज कीप यू ऑलवेज। तो बेटर है कि आप इसको किसी ना किसी एनएलपी की थेरेपी के थ्रू भी कर सकते हैं, या किसी और तरह से भी कर सकते हैं। तो आप इस पैटर्न से बाहर निकल आए।
तो वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस पैटर्न को उठाना चाहते हैं अभी, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा सेशन यही लाइव कर सकता हूँ, जिससे आप और आपके सारे ऑडियंस अभी इसी वक्त किसी भी पुराने इश्यूज से बाहर आ सकते हैं। इफ यू आर ओके, तो अभी हम इसको शुरू कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. We will ओके, तो आपके पास जो भी लाइफ में इवेंट हुआ था, जस्ट आप उसको रिकॉल कर लीजिए। यू डोंट नीड टू शेयर, आप उसको जस्ट अभी रिकॉल कर लीजिए। वो अनप्लीजेंट इश्यूज अभी आपको याद आ रहा होगा, दिख रहा है। ओके, अब आप उसको, नो डाउट एक वीडियो के फॉर्म में होगा वो, और वो आप ध्यान करिए कि आपके बाहर सामने कोई जो दीवार है, उस सामने दीवार पे वो एक टीवी पे चल रहा है। अगर उसमें बहुत सारे कलर हैं, तो आपके हाथ में एक रिमोट है, और उस कलर को सारा डिम करके ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। अगर वहां कोई साउंड है, तो आपके पास जो रिमोट है, उस रिमोट से आप उसको वॉल्यूम कम कर दीजिए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और नाउ इट्स म्यूट। अब जरा उस वीडियो को चलाइए। आई श्योर यू कि अब वहां पे कलर नहीं होंगे, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, और शायद अब आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा कि वहां पे वॉल्यूम क्या है। ग्रेट। अब आप सडनली एक रिमोट से बटन दबा करके फ्रीज कर दीजिए, किसी भी एक पिक्चर पर फ्रीज कर दीजिए, और एक सामने इमेज आपके लिए फ्रीज हो गई होगी। और जब वो फ्रीज हो गई है, तो आप सडनली देख सकते हैं कि जैसे आपके टीवी में सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, और वहां काली सफेद ढेर सारी बिंदियां एक साथ झिलमिल झिलमिल होने लगती हैं, नो सिग्नल। तो आपके पास स्क्रीन में वही चीजें दिख रही हैं, और वो सडनली जब स्क्रीन में दिख रही है, आपके प्लग के पास, टीवी के पास एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है, और वो टीवी पूरा जल गया है, और वो जल करके ऐश में बन गया है, ऐश नीचे आ गई है, गिर गई है, और एक छोटी सी विंड आई है। वो हिंड, पूरी पूरी हवा उस एशेस को लेकर के आपके घर से बाहर ले जा रही है, बाहर एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई, वो दिख भी नहीं रही अब, सारे निशान गायब हो गए, आपके सामने दीवार खाली है, और सडनली आप देख रहे हैं तो वहां पर आपका मन चाहा कोई फेवरेट पिक्चर आ गई है, और बहुत अच्छी पिक्चर है। अब आप देख रहे हैं कि हाँ, ये पोस्टर बहुत अच्छा है। आपकी एक मनपसंद कोई एरोमा भी आसपास आपको महसूस हो रही होगी, और अगर कोई एक अच्छा सा सॉन्ग, गाना, कुछ अच्छी सी बात आपके आसपास आ रही है, तो वो भी आप महसूस कर सकते हैं। और जस्ट अभी आप अपनी रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करिए, स्पाइन आप सीधी करें, और एक गहरी सी सांस लीजिए, और अपना अपना मोबाइल नंबर तेजी से बोल दीजिए। जी बिल्कुल, फिर से दोहराइए, एक बार फिर से नंबर बोल दीजिए। बढ़िया। अब मैं आपसे कहता हूं कि जरा रिकॉल करने की कोशिश करिए उस इमेज को, वो इंसिडेंट को। आई एम श्योर कि वो अब आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं होगा। इस वक्त आपको वहां पर सिर्फ एक अच्छी प्लीजेंट सी तस्वीर दिख रही होगी, अच्छी स्मेल आ रही होगी, और अच्छा सा गाना सुनाई दे रहा होगा। यानी अगर वो अनप्लीजेंट इमेज हट गई है, वो रेफरेंस हट गया है, तो यकीनन उससे जुड़ा आपका इमोशन भी खत्म हो गया है। इस समय आपके पास सिर्फ हेल्दी और अच्छा इमोशन है। आपका जो इलनेस वाला या ट्रबल मेकिंग इमोशन था, वो आपके माइंड से जा चुका है। दिस ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. It's really a good feeling. The next part is I imagine a beautiful tree with lots of beautiful यस, red apples and यस, beautiful breeze flow, passing through me, and that's a real good feeling. बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी फीलिंग अंदर से आई है सचमुच में। और अब जब भी आप कभी उसको स्टार्ट करके सोचना भी चाहेंगे ना, जी फोर्सफुली भी, तो भी वो यही दिखेगा। जी यानी एक तरफ था अनप्लीजेंट चीज, एक तरफ है प्लीजेंट चीज। जी तो प्लीजेंट है, अब वो अच्छा लग रहा है, और जी अनप्लीजेंट चला गया। जी एक्चुअली आप जिस भी इमोशन में रहते हैं, किसी ना किसी इवेंट के साथ जी रहे होते हैं। जी वो इवेंट खत्म होता है आपके इमोशन में, और उस इवेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। जी तो हमने आपके सिर्फ उस इवेंट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। तो जब स्ट्रक्चर बदल गया है, तो उससे जुड़ा इमोशन भी बदल गया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर वेरी नाइस thank you for this beautiful exercise and this beautiful therapy like it's not an exercise it's a therapy इट्स type of इट्स एक्चुअल थेरेपी। therapy wonderful sir very nice और thank आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि लोग कहते हैं ना, न्यूरोटिक इश्यूज और प्रॉब्लम से निकलने में बहुत टाइम लगता है, ये तो सालों की है, उतना टाइम लगता है। जी नो इशू।
ये आपके हाथ में है, आप जब भी चाहें तुरंत बदल सकते हैं। इट्स फ्रिक्शनल, इस ये कुछ आप देखिए 1 मिनट के अंदर ही आप इतने सालों पुराने रखे हुए इश्यूज से वो सॉल्व कर लिया। जी जी, थैंक यू सर वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर सर, दूसरी क्वेश्चन ऐसी है कि भाई बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना नहीं खाते, अपने आप को नो को फ्रेश अप नहीं करते, बस ऐसे ही गुमसुम रहते हैं, अपने रूम में बंद करके रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन। तो इस बिल्कुल। डिप्रेशन स्टेट से बाहर कैसे निकले? ये अब देखिए ज्यादा डिप्रेशन आज यूथ के, वी कैन फाइंड इट इन द यूथ मोस्टली, सो हाउ डू वी कम आउट ऑफ? डेफिनेटली, एक्चुअली अब क्या हो गया है कि डिप्रेशन ना एक फैशन वर्ड बन गया है। असल में लोग डिप्रेशन का मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे हैं। डिप्रेशन हमेशा जब भी कोई एक सैडनेस आपके पास बहुत लंबे समय तक जुड़ी रहे, यानी अगर वो 15-20 दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ रही है और सेम इश्यू से आप सैडनेस में जुड़े हुए हैं, तब वो डिप्रेशन का रूप लेती है। और अदरवाइज आजकल आप देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे से कह रहा होता है, कल तो यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, कल डिप्रेस थे, कल आप सैड थे, वो सैडनेस आपकी खत्म हो गई और खत्म होकर के आप वापस हैप्पी हो गए या नॉर्मल हो गए। डिप्रेशन की स्टेट आना ही वो आपके लिए बहुत लंबी स्टेट है। जब तक बहुत लंबी सैडनेस बनी रहती है, तब कहीं कोई डिप्रेशन में आता है। और डिप्रेशन में आने के लिए सिंपल सी बात है कि आपने एक इशू को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा हुआ है, आप उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जब सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अभी जो अब एग्जिस्टिंग हमारे पास रेफरेंसेस हैं, उससे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और हम उससे बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में जब कभी भी आपको सैडनेस के साथ ये लगे कि हमारे जितने भी इश्यूज मिले हैं, जितने भी नॉलेज, बेस्ट ऑफ नॉलेज हमारे पास है, अगर ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रही, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। आप तुरंत किसी एक्सपर्ट से या किसी फैमिली मेंबर से, किसी बड़े से या किसी प्रोफेशनल से तुरंत हेल्प मांगिए कि प्लीज आप इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि मैं क्या, कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो इसका दो ही तरीके हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम को इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर दें, सॉल्यूशन करें और आगे बढ़ जाएं। और अगर अभी नहीं मिल पा रहा है उसका सॉल्यूशन, तो नो डाउट अभी के लिए उसको आपको छोड़ना होगा, आप दूसरी चीजों में फोकस करें। और जब कभी फ्यूचर में आपको उस तरह की कैपेबिलिटीज या स्किल बढ़ जाए, तो आपके सामने ऐसी कोई इश्यू आती है, तो उसका आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो डिप्रेशन में आने का मेन तरीका यही है कि आपने एक सैडनेस को बहुत देर तक पकड़ के रखा हुआ है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सिर्फ इतना सा है कि जब भी कोई हेल्प मांगता है, तो उसको हमेशा हम लोग स्टिग्मा के साथ बुरी नजर से देख लेते हैं, या एक हारा हुआ सा महसूस करता है कोई पर्सन। अच्छा, तुम्हें इसके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा? सॉल्यूशन सिर्फ पर इतनी सी बात होती है, कई बार हम बहुत बड़े इश्यू का सॉल्यूशन बहुत छोटा सा मिल सकता है। मेरे सामने एक ऐसा था सिंपल सा इश्यू, एक स्टूडेंट को कैरियर से रिलेटेड इशू आ रहा था और उसके पास 2-3 ऑप्शन थे। अब उस 2-3 ऑप्शन में जब वो अलग अलग एग्जाम दे रहा था, सिलेक्शन के मूड में चल रहा था, तो एक जगह से उसका क्वालिफाई नहीं पाया, बाकी 3 जगह क्वालिफाई हो गए। और वो उस एक जगह को पकड़ के बैठा है कि मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। तब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कैरियर में ये टॉप प्रायोरिटी पे था? ही सेड नो, अदर 3 में थे। अदर 3 में थे तो फिर तुम इसको लेकर के ही इतना ज्यादा क्यों करे हो कि बाकी 3 जो आपके पास एक्सीलेंस मिले हैं, अचीवमेंट हुए हैं, उनको भी आपने इसकी वजह से अनवर्दी कर दिया है। तो जैसे ही हमने उसको उधर पैरालाइन शिफ्ट करा, वो तुरंत बदल गया। और आपके माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि हमारी न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करती है। अक्सर आप देखेंगे कि जो भी डिप्रेस सा होगा या सैड होगा पर्सन, उसके शोल्डर थोड़े से झुके हुए होंगे, उसकी चिन नीचे को होगी, वो नीचे जमीन की तरफ देख रहा होगा। अगर आप उसको तुरंत ही मोड बदलना चाहते हैं, तो उसके सामने खड़े हो जाइए और उससे तुरंत कहिए, जरा अपना शोल्डर पीछे वाइड ओपन करो, अपनी चिन ओपन करो और आप बात करो। तो इतनी जल्दी में वो डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ फिजियोलॉजी चेंज करके हम अपनी न्यूरोलॉजी बदल सकते हैं और न्यूरोलॉजी बदल करके हम फिजियोलॉजी बदल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डिप्रेसिव पर्सन आपको मिल जाए और वो कहीं कुर्सी पे या सीट पे किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है, तो उसके सामने आप खड़े हो जाइए, बिकॉज अननोइंगली उसको अपना मुंह उठाना ही पड़ेगा ऊपर। और जब वो ऊपर की तरफ उठाता है, आप उसके कंधे सीधे कर दीजिए, वो डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ गई। तो सिंपल से टास्क है, इतनी सी बात करके। और ये आप अभी चाहे तो कोशिश कर सकते हैं
अगर आप ऊपर की आसमान की तरफ देख करके या अपनी छत की तरफ देख करके कोई एक बुरी याद को कोशिश करना चाहें थोड़ा सा सैड होने के लिए, ट्राई करें, आप नहीं हो पाएंगे। अगर आप ऊपर की तरफ देख करके अपने आप को थोड़ा सा सैडनेस के मूड में लाएंगे तो पक्का है आप सैड नहीं हो पा रहे होंगे, आपको उसके लिए नीचे देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ब्रेन प्रोग्राम है। तो आप जब भी चाहें अपने आप को स्टेट बदल सकते हैं फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी में ऑल्टरेशन करके। Wonderful, sir. Wonderful. Thank you very much. So you have so many beautiful ways. इतने सारे ब्यूटीफुल टेक्निक्स हमें बता रही है, तो आपके लिए आई शुड से हैट्स ऑफ टू ऑल द ब्यूटीफुल टेक्निक्स। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू, थैंक आज तक भी हमें ये सब नहीं मालूम था, इतना डेप्थ में यू। नहीं बिल्कुल। मालूम था, बस हम लोग सरफेस ऊपर ऊपर में। बट आप या you're taking us into the deeper part of understanding how NLP works and how you should Yes. manage your life. Very nice, sir. Sir, अभी एक क्वेश्चन है, एक हमारी फ्रेंड मोनाली गुप्ता, she has sent this question for us. She's here among Okay. us. She says, sir, how can a girl or a woman come out of trauma if she has faced domestic violence, eve teasing, या उसका शोषण हुआ है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक औरत या एक लड़की, एक स्त्री इससे बाहर कैसे आए? तो ये पूछना चाहिए। नाम उन्होंने बदल दिया, मोनाली गुप्ता है, लेकिन नाम उसका कुछ और है। तो बस आपसे ये बिल्कुल। निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इसके आंसर दे दीजिए। देखिए हमारे पास लाइफ में इवेंट्स हो रहे होते हैं जो कि प्रेजेंट और अनप्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है। नो डाउट मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जो अनप्रेजेंट रहा है और जो अभी आपको पसंद नहीं आया है। तो अभी जो मैंने आपको छोटी सी एक्सरसाइज कराई थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर करें। उससे आप उस इवेंट को अपनी लाइफ से हटा पाएंगे। और उसके साथ आप ये देखिए कि जब भी आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट आर हैपनिंग टू यू, यू आर नॉट द इंसिडेंट। आप अपने आप को ये माने कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो आपके साथ हुआ था और वो खत्म हो गया। इट डजेंट डिस्क्राइब यू, आप वो नहीं है। आपके पास कार है, इट डजेंट मीन कि यू आर द कार। तो आपके साथ कोई एक्टिविटी हो गई थी, कुछ एक्ट हो गया था, इट्स हैपन टू यू, इट डजेंट मीन कि यू आर द सन। तो आप जैसे ही आप ये थॉट लाते हैं मन में, आप तुरंत उस इमेज से डिसोसिएट हो जाएंगे। अभी तक आप उसके साथ एसोसिएट हैं, आप तुरंत ही डिसोसिएट हो जाएंगे। तो डिसोसिएट हो जाने से ही तुरंत आप देखेंगे कि उसके जुड़ा हुआ इमोशन आपके साथ कम हो गया होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अभी जो आपके साथ इवेंट हुआ था, आपको वो अगर कैलेंडर की डेट याद है, अगर वो टाइम और प्लेस याद है, तो आप सिर्फ उसमें से प्लेसेस बदल दीजिए, वो टाइम और डेट कैलेंडर बिल्कुल जीरो कर दीजिए, गॉन कर दीजिए कि वो अब दिख ही नहीं रहा है। और वो जो इंसिडेंट हुआ था उससे आप सिर्फ एक क्वेश्चन ये करिए कि व्हाट दिस इंसिडेंट टीच मी। इस इंसिडेंट ने मुझे क्या सिखाया, मुझे लर्निंग क्या मिली, बजाय ये कहने के कि मेरे साथ ये एक्ट गलत हो गया। अगर आपको कभी करंट लगा है, आपने नो डाउट एक्सपीरियंस करा होगा, जी जी सर। उस करंट लगने से आपको लर्निंग क्या मिली ये बताइए। सिर्फ ये लर्निंग मिली कि हमें नंगे हाथों से कभी तार को नहीं छूना है, व्हेन द स्विच इज ऑन। और जब कभी ऐसा होने लगे तो सबसे पहले हमें स्लीपर पहन लेनी है। स्लीपर पहन लेंगे तो पानी नहीं होना चाहिए। दीज आर द सिक्योरिटी और प्रिवेंशन मैटर्स। ये आपको बताते हैं कि करंट से बचना है, क्योंकि करंट तो हर तरफ है। तो ऐसा ही आपके साथ जो एक एक्ट हो गया था, इट्स लाइक अ करंट जो लग गया था, बट यू गॉट लर्निंग। लर्निंग। आपका ब्रेन सिर्फ लर्निंग्स को लेता है, इंसिडेंट याद रखने की उसको जरूरत नहीं है। तो जो आपके साथ अभी एक्सरसाइज कराइए, प्लीज उसी एक्सरसाइजेस को आपने अपने इंसिडेंट के साथ करें। आप देखेंगे कि तुरंत वो उसका इम्पैक्ट आपके साथ गायब हो गया है। एंड नाउ योर ब्रेन इज प्रिटी मच रेडी कि अब मुझे आगे क्या करना है। जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपका एक्सीडेंट किसी के साथ हुआ हो ना हो, चोट लगी ना हो, आपके ब्रेन ने लर्न कर दिया है कि जब भी हम रोड पे जाएंगे तो हमें हर तरफ देखना है, राइट लेफ्ट, ट्रैफिक सिग्नल देखना है, देन आगे बढ़ना है। इट डजेंट मीन कि आपको एक्सीडेंट होने की जरूरत पड़े। आपने अगर दूसरे के इंसिडेंट से भी सीख लिया है तो इट्स टू गुड। तो वो जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, नो डाउट उस इवेंट को तो हम लोग जाकर के नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आपके पास हुआ है वो आप तुरंत चाहे तो बदल भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से उनको कहना भी चाहूंगा
कि आप अगर चाहें तो हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। हमें खुशी होती है ऐसे काम करने में, क्योंकि हम कभी भी रेप विक्टिम और टीजिंग की जो भी विक्टिम्स हैं उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन करते हैं, थेरेपीज करते हैं, और उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकाल करके मेन लीड में आसानी से देते हैं। और आज वो लड़कियां बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अपने एजुकेशन में या करियर में एक्सेल कर रही हैं। Thank you, sir. Thank you for giving that last part of the information. You're giving a lot of, care and support to all those girls who suffered, different types of forms of sexual abuse, or you want them डेफिनेटली। to come out. That's very nice. बहुत बहुत शुक्रिया, और sir. सबसे अच्छी बात यह है एनएलपी में कि आपको हमारे साथ पूरा इंसिडेंट को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी जैसे अभी अगर लास्ट एक्सरसाइज आपने जो करी है, जी। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके साथ हुआ क्या था, प्लीज हमें वो बताइए। हाँ जी जी नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट आपके साथ ऐसा करते हैं अक्सर, जब आप जाते हैं तो वो आपसे पूरा इंसिडेंट पूछते हैं। हाँ, जी हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या हुआ था। जी जी ये इस तरह से हो जाता है कि आप उस इंजरी को दोबारा पिंच कर रहे हो, जी फिर से आप उसको परेशान कर रहे जी। हो। बट इन एनएलपी हम क्या करते हैं कि सिर्फ आपके पास इवेंट है, जस्ट कीप इट विद यू, एंड वी आर जस्ट चेंजिंग इट्स ऑल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। तो जैसे ही हम उसका पैटर्न और उसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं, यू गॉट डिफरेंट इमोशन। सुपर्ब सर, वंडरफुल। मुझे ये अच्छा लगा कि भाई, don't need to retell it, don't need to reshare it, just नो shift इश्यू, your thought बिल्कुल। process. जी Yes. बिल्कुल, आगे बढ़ने की बात है। जो चीज आप बात जिससे बचना चाह रहे हैं, वो चीज आपको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं जी जी है। एक्चुअली हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है। एक्चुअली हमारे ब्रेन में ना नहीं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव का। जैसे अगर मैं आपसे अभी इस मौके पे कहना चाहूं कि जस्ट आप अमिताभ बच्चन के बारे में मत सोचिए, अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी है ये भी मत सोचिए, अमिताभ बच्चन किस तरह से चलते हैं ये भी मत सोचिए। व्हाट हैपेंड टू यू? अमिताभ बच्चन ये रहे, ये- डायलॉग भी सुन लिया आपने और उनका एक्ट भी देख लिया। जी जी तो अगर हम चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन हमारे माइंड में ना आए, तो आई कैन से थिंक अबाउट ऋतिक रोशन, कि ऋतिक रोशन कैसा बोलते हैं, कैसा एक्ट करते हैं। अब कहाँ है अमिताभ बच्चन? जी। अमिताभ बच्चन कौन? यस। क्योंकि हमारे ब्रेन के पास नहीं, नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी वो कोई ऐसी चीज सुनता है जिसका उसके पास रेफरेंस रखा है, वो आपके सामने रख देता है। सच है, अगर मैं आपसे कहता हूं बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हेलीकॉप्टर, अभी मैंने सिर्फ बोला है, लेकिन वो टक 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 उसके इमेज और रेफरेंसेस आपके ब्रेन में उसने पुट कर दिए, जो भी उसके पास बेस्ट नॉलेज के साथ अवेलेबल है। तो हम नहीं करने वाली बात नहीं करते, हमें जो रिजल्ट चाहिए उस पर बात करिए। सुपर। और आपने जब ये बात उठाई है तो मैं आपके सामने पेरेंटिंग को भी ये बात टिप्स दे देता हूँ कि पेरेंट हमेशा हमारे बच्चे को कमांड देते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। सच में अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंदर रहे, तो हम उससे ये कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना। तो हमारा ब्रेन कैसे देता है बाहर जाना? नहीं को तो लेता ही नहीं, तो वो जी बार बार ड्राइव करता है बाहर जाने को। तो वहां पर हमें कमांड बदल देनी होगी कि बेटा अंदर रहिए। तो जब अंदर रहिए मैं उनसे बोलूंगा, तो बच्चा कहेगा अंदर और रहिए, तो बाहर की तो बात आएगी नहीं। तो जब बाहर आएगी नहीं तो नो डाउट वो बाहर की तरफ पुश भी नहीं होगा। जी जी। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई लाइक टू आस्क यू सर। लोग Sure. जो है, यूथ, इवन स्त्री लोग और पुरुष लोग दोनों भी, ये जो अल्कोहल, ड्रग्स में ज्यादा आसक्ति दिखाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, खुद को और अपने परिवार लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे कैसे बच सकते हैं? लोग इसमें पहले क्यों गिरते हैं? वजह क्या है ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने का? बिल्कुल। देखिए, जो भी लोग इस तरह की बुरी आदतों में जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, सिंपल सी बात है कि उनको पता होता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए डैमेजेबल है, ये एक्ट हमारे को नुकसान करेगा, मेरे शरीर को भी नुकसान करेगा, मेरी हेल्थ को भी नुकसान करेगा, मेरा सोसाइटी इन्फ्लुएंस भी खराब होगा, मेरा अपना इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा। दे ऑल नोज कॉन्सिक्वेंस, उनको सब पता है। दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक होते हैं सैडिस्ट, जो कि दूसरों को पेन दे करके खुश होते हैं, और एक होते हैं मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट वो होते हैं जो कि खुद को पेन दे करके किसी और से रिवेंज लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे, कई बार वो अगर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, दैट मीन्स
कि वो आपसे डायरेक्टली अपने पेरेंट को लड़ नहीं पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते या उनको पनिश नहीं कर पाते, तो दे आर पनिशिंग देमसेल्फ। तो थ्रू देम दे आर पनिशिंग देयर पेरेंट। तो इस तरह से जो लोग, जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी अपनी लाइफ की वर्थ खत्म हो चुकी है। और दूसरा, वो अपने थ्रू अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स को डैमेज करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो कभी ऐसा एक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप देखेंगे उस पर्सन के साथ साथ उस फैमिली की प्रेस्टीज खराब हो जाती है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि इनका बेटा खराब है या इनकी बेटी खराब है जो ड्रग्स लेती है या अल्कोहल लेती है। वो जब भी सोसाइटी में बेसुध होकर के जमीन पे या नाली में कहीं गिरा होता है या कहीं ड्रोन, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली लेट डाउन हो जाती है, उसकी फैमिली की इंसल्ट होती है। तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली के किसी मेंबर से रूलिंग में अथॉरिटी में नहीं लड़ पाता है, तो ही डू सच काइंड ऑफ एक्ट कि मैं अब ऐसा करूंगा तो तुम्हारी प्रेस्टीज डाउन होगी। और उसको कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी सी खुशी मिलती है, यस ये काम करता है, ये काम करता है तो अगली बार फिर करेंगे। और उसमें कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं, कि किसी ने देखा सिगरेट का एड एंड ही फील्स यस ये माचो सा लगता है, तो चलो माचो फीलिंग लेने के लिए हम ऐसा कर लें। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस उसको पता है कि मेरे लिए नुकसान हो रहा है, लेकिन अनदर टाइम वो फिर से माचो बनने के लिए कुछ और एक्सट्रीम करता है। ये बिल्कुल हमारे ब्रेन में डोपामीन और इस तरह के वेलनेस केमिकल को बढ़ाता है, जो कि एक आप देख सकते हैं एडवेंचर गेम वाले लोग हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप देखते होंगे वो अगर बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो पहले वो 20 फुट से करते हैं। जब 20 फुट से कर लेते हैं देन दे गो फॉर 40 फीट, 40 फीट पे जाते हैं। 40 फीट से भी मजा आ गया, अब क्या करना है, नाउ 60 फीट, 80 फुट, उसके बाद वो क्या करेंगे, अब हम हवाई जहाज से एरोप्लेन से जंप करेंगे, बिकॉज ऑफ एडवेंचर, बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन दैट डूम, कि कितना क्रेज मजा है। तब वो इस तरह के काम करते हैं। द सेम वे द पीपल आर डूइंग बुल फाइटिंग। वो जब रिंग में जा करके बुल को डिफीट करते हैं और बुल के साथ बचते हैं, एक्सट्रीम डेंजर से बच के आते हैं, इट्स लाइक पैशन, इट इज एन एडिक्शन। तो इसी तरह का उनको कुछ मजा वो आता है अल्कोहल से, थोड़े से पॉइंट के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल या ड्रग्स इसलिए लेते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ अनरिजॉल्व इश्यूज। एक्चुअली हमारा ब्रेन एक अलार्म की तरह काम करता है। कोई भी इश्यूज अगर उसके पास पड़े हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, सच एज आपको मैं ये बताता हूँ कि कोई कॉर्पोरेट का एम्प्लॉई है जो ऑफिस में काम कर रहा है और उसके टारगेट प्रेशर पूरे नहीं हो रहे, तो उसका अलार्म कर रहा है, मैं क्या करूं, काम कैसे करूं, आउटपुट कैसे निकालूं, परफॉर्मेंस कैसे दूं। वो परफॉर्मेंस के चक्कर में वो सो नहीं पा रहा है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा। और जब भी वो सोने लगता है उसका ब्रेन तुरंत अलार्म करता है, काम बाकी है, काम बाकी, काम बाकी, काम बाकी है। तो जब वो काम बाकी है, बार बार ये अलार्म हो रहा है, नींद नहीं आती है, तो ट्राई टू स्लीप और अपने आप को सोने के लिए, आराम देने के लिए वो यूजिंग करता है। वो अल्कोहल लेगा या कोई और दूसरा पिल्स या कोई ड्रग्स ऐसा ले लेगा जिससे एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उसका ब्रेन काम हो जाए और वो सो जाए। तो जब वो सो जाता है तो ही फील्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जैसे ही वो जागता है, प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एक कबूतर बिल्ली को देखने के बाद आंखें बंद कर लेता है कि मैंने तो बिल्ली को देखा ही नहीं, और अल्टीमेटली बिल्ली उसका शिकार करके चली जाती है। तो सेम यही एडिक्टेड लोग करते हैं कि जब वो कभी अल्कोहल या इस तरह की चीजों को इनपुट लेते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा ही देर के लिए प्रॉब्लम की वजह से जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही, तो एटलीस्ट मैं थोड़ी देर शांत होकर सो लूं। और जब वो सो जाते हैं तो उनको रिलैक्स मिल जाता है, एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। वो बार बार फिर से एक्सरसाइज करते हैं, वो फिर वही करते हैं, एंड दे बिकम एडिक्टेड। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या किसी ड्रग्स का ही नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह उठते हैं और जब तक उनको चाय ना मिले तब तक वो वॉशरूम जाकर के फ्रेश भी नहीं हो सकते। और या इवन उसमें से कुछ ऐसे स्मोकर्स होते हैं जो सुबह उठने के बाद कहते हैं कि अगर मैं एक सिगरेट नहीं पी लूं तब तक मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ। तो दिस इज एडिक्शन। और एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या ड्रग्स का ही नहीं होता।
बहुत सारी चीजों का एडिक्शन होता है। गेमिंग का एडिक्शन है, स्पीड्स का है, थ्रिल करती है। इसी तरह से जो हमने आपको बताया कि सेक्सुअल एडिक्शन होता है, तो सेक्सुअल एडिक्शन में भी पर्सन किसी एक पर्सन के साथ सेक्सुअल एंजॉय नहीं कर पाता। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग तरह से और अलग अलग लोगों को चुनता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए या वो प्लेजर लेने के लिए वो कई बार ऐसे ऑफेंस कर देता है, ऐसे क्राइम कर देता है जो कि हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये टोटल पूरा काम होता है जिसकी वजह से एडिक्शन चलता है। और जब कोई भी वो पर्सन अगर अपनी उस एडिक्शन को लेकर के सीरियस हो जाए और वो उस इश्यूज को पकड़ ले कि कौन से ऐसे अन इश्यूज हैं जो कि मेरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अगर मैं उस पर काम करता हूँ, देर इज नो नीड ऑफ एडिक्शन। तब उसको नींद बहुत अच्छी सी आएगी, उसके मसल्स रिलैक्स होंगे, उसकी बॉडी पूरी रिलैक्स होगी, और जब भी वो सो करके उठेगा, ही फील्स अ ब्रीज ऑफ वेलनेस, और उसके बाद उसको कभी भी किसी तरह के एडिक्शन की जरूरत नहीं होगी। Yes, yes, sir. Thank you, sir, for sharing that. Sir, abhi ek last question, a very important question for today, sir. This question is like this: you have any suggestions for therapists, for counselors, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स? आप तो यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप इतना सब जानकारी हमें दे चुके हैं, बाकी सब जो नए हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई अच्छा सा सजेशन कि भाई आपका ऑथेंटिक है, आपका एग्जांपल्स के साथ दे रहे हैं, थेरेपी, इट्स वेरी जेन्युइन। तो बाकी लोग Yes. जो है अभी अभी उतर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई अच्छा सजेशन? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? डेफिनेटली जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए तो है, और जो लोग एग्जिस्टेंस हैं जी। उनके लिए भी है। अगर आप देखेंगे कि मेंटल इश्यूज को लेकर के कोई प्रोफेशनल्स के पास जाता है तो उसको बार बार जाना पड़ता है, और वो अलग अलग सिटिंग्स लेता चला जाता है, एंड इट इज कीप ऑन। तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास मेंटल इश्यू अगर अभी पड़ा है, जिस तरह से मैंने आपके साथ कुछ एक्सरसाइज करके अगर उन इश्यू को रिजोल्व कर दिया है, तो देर इज नो नीड फॉर सिटिंग्स के बार बार सिटिंग लेने की जरूरत क्या है। तो अंतर ये हो जाता है कि जितने अभी हमारे साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं पीपल, जितने भी पेशेवर बैठे हुए हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, मैक्सिमम लोगों के पास बुकिश नॉलेज, उन्होंने साइकोलॉजी की स्टडी करी हुई है, बट एप्लीकेशन नहीं करा है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, कि जब वो एप्लीकेशंस करेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे, उनके पास प्रूवन रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ फीडबैक मिलेंगे, और फीडबैक के बाद उनको ये पता चलेगा कि अब मुझे और कहां पर ऑल्टर करना है, क्या चेंजेस करने हैं। हमारे पास कई ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं जिनके साथ हम मुलाकात करते हैं, उनको जब हम सेशन देते हैं, दे ऑल सेड सर हमें तो एक ही चीज मालूम है कि पेशेंट को आना है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है और प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखनी है और भेज देना है। जब आप सोचिए कि जो इश्यू न्यूरोटिक है, जो सोच से, हमारे थॉट से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, उसकी मेडिसिन क्या करेगी? मेडिसिन उसको थॉट नहीं बदल सकती। मेडिसिन उसका सिर्फ एक ही काम करेगी कि वो पेन किलर्स की तरह से जो पेन का इमोशन है ट्रिगर कर रहा है, आप पेन नहीं फील कर पाओगे, आपके न्यूरॉन्स को बंद कर देगा। ये सिंपल सी बात है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? एंटी डिप्रेशन से सिर्फ इतना हो रहा है कि वो पर्सन सोता रहता है, आपने उसकी एनर्जी को बर्न ऑफ कर दिया है। अब आप उसकी एनर्जी, जब भी वो वापस एंटी डिप्रेशन बंद करता है, उसकी आदत खत्म होती है, उसका ब्रेन वापस एक्टिव होता है और वो फिर से अलार्म उठाता है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। वो कहता है नहीं, फिर से गोली खा लो और सो जाओ। तो डिप्रेशन या इस तरह की जितने भी न्यूरोटिक इश्यूज हैं, दे आर अकरिंग फ्रॉम थॉट्स। और थॉट्स आपकी दवाइयों से, आपकी एक्सटर्नल चीजों से कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकते। आइदर थॉट्स को आप प्रोडक्टिव बनाएं, और या फिर थॉट्स आपके लिए डैमेजेबल हो जाएंगे, जो आपके लिए नुकसान करेंगे। और थॉट्स आना आपके ब्रेन के लिए सबसे आसान बात है कि ब्रेन आपको सर्वाइवल और आपके बेहतर के लिए कुछ ना कुछ चीजों पे अलर्ट करता है। वो तुरंत बताता है कि दीज आर इश्यूज जिनको कि हमें अटेंशन करना जरूरी है, और हम उसको हमेशा बाईपास कर देते हैं ड्यू टू अल्कोहल, ड्यू टू ड्रग्स, ड्यू टू कोई और स्लीपिंग पिल्स, या किसी और तरफ डाइवर्ट होकर। ऐसा नहीं करिए। आपके पास जब कभी इश्यूज आते हैं, बेटर है कि आप उसको सॉल्व करें। और कई इश्यूज हमारे तो इस तरह के हैं जो हमने सिर्फ एज्यूम कर रखे, वो हुए नहीं है। मैक्सिमम फियर हमारे पास वो है जो कि असल में हमारी लाइफ में घटे नहीं। हम सिर्फ एक बात पे इश्यू होते हैं, अगर ऐसा हो गया तो,
ये तो वाली बात जो है ना, अगर ऐसा हो गया तो, और वो एज्यूम कर लेते हैं कि होना है तो नेगेटिव ही होना है। और तो जब हम लोग किसी के साथ सेशन कर रहे होते हैं, उसको जब ये पूछते हैं कि मान लीजिए आपके साथ जो गलत हो रहा है वो हो गया, आप बताइए इसके बाद क्या, कहता जी कुछ नहीं। या कभी स्टूडेंट से हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप फेल हो गए या आप सक्सेस नहीं ले पाए, आपके पेरेंट्स को बुरा लगा और आपके पेरेंट्स ने आपको मारा, डांटा या अब्यूज करेगा, कुछ बात पे आपको डांट पड़ी, पिटाई हुई, उसके बाद क्या, कह रही उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हमारे फादर ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ जो भी है वो सब अच्छा चलेगा और हम ठीक हो जाएंगे, हमारी फैमिली अच्छी चलने लगेगी, दोबारा से हम वैसे ही खाना पीना शुरू कर देंगे, वापस लाइफ वैसी चलने लगेगी। तो बस वो जो तो यानी एक छोटा सा मोमेंट होता है, उस मोमेंट के चक्कर में हम इश्यूज कर रहे होते हैं। और जो आपने सुसाइड वाली बात करी, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि ताकि हमारे जितने भी यंग प्रोफेशनल है वो समझें कि जो भी सुसाइडल टेंडेंसीज ले रहे हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम इज टेम्परेरी, वो अभी है, और अभी कुछ समय बाद देखेंगे तो वो प्रॉब्लम जा चुकी होगी। तो जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितनी भी आपने स्टडी ले रखी है, एजुकेशन ले रखी है, नॉलेज है आपके पास, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हो सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव साइड्स के, वो पॉजिटिव साइड्स आपके अपने पेशेंट्स के साथ या जो भी अभी सफरर है उसको शो करिए। जब उसको वो चीजें पॉजिटिव दिखेंगी तब वो उसकी तरफ जाए, अदरवाइज वो अभी तक देख ही नहीं पा रहा है, अभी वो सिर्फ बुरी साइड को देख रहा है, उसको अच्छी साइड दिख ही नहीं रही। तो जब उसको आप अच्छी साइड दिखाएंगे तो देयर इज अ होप, और जैसे ही उसको होप मिलेगी तो उसको पॉजिटिव साइड जाने के लिए एस्पेक्ट भी दिखेगा और रास्ता भी मिलेगा। दिस इज ऑल। थैंक यू सर, वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई वांट टू आस्क यू, लेकिन आपका टाइम मैंने 1 घंटे से ज्यादा ले लिया। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी पर्सन है, आपके हाथ में बहुत सारी काम बाकी अभी है, फिर भी आप बिल्कुल हमारे लिए वक्त निकाल के आए हैं। दोबारा आप इस मंच पर आना है फिर, एंड शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज। एक छोटी सी जरूर। रिक्वेस्ट है सर, अगर हमारे दर्शक आप तक पहुंचना चाहते हैं, कनेक्ट विद यू, तो आप कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, किस माध्यम से, इफ दे वांट? उसके लिए वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट www.punlp.in है, और दूसरी है www.forgiveness.org.in। इस वेबसाइट में आप अगर जाते हैं तो उनको सारे ईमेल आईडी, फोन नंबर्स मिल जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी आसानी से सॉल्व करने के लिए हम पे सजेशन दे सकते हैं। और कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी होती है, आपका इश्यूज सॉल्व हो जाना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो आप जरूर अपने उस न्यूरोटिक इश्यूज जिसका आपको सॉल्व नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, प्लीज आपसे एनकरेज करते हैं कि आप हमसे सॉल्व करें, और उसको आपको आसानी से सजेशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आप आगे अच्छे वेलनेस की तरफ जा सकेंगे। Thank you very much, sir. Dear friends, do get connected with Dr. Pawan. He's really Pawan Sharma. Dr. Pawan Sharma, he's a very nice person who has a lot of experience. He says, no, it's not theory, it is application. That gives you that knowledge and experience to go forward and do something for people. And of course, keep your brain and your thoughts in control. Do not destroy your thoughts and control. And your way of thinking. Don't take drugs, don't take any pills. Just rewire your brain, shift your thought into the right process. there's a connection। अभी जैसे आपने बोला ना डोंट डू, तो डोंट हमारा ब्रेन नहीं लेता। जी जी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा पर्सन हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, जी। So you're on mute, sir. Yes, you're on mute. Yes, dear. अच्छे रहिए, और वो सारी एक्टिविटीज करिए, वो सारी एक्सरसाइज करिए जो जी। आपको हेल्दी बनाती Yes, that's very nice, positive. Keep your brains. है। कमांड वो दीजिए, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उस पर कमांड दीजिए, जी 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 जो हम नहीं चाहते उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। जी। Focus on improving your brain, focus on improving your thoughts, focus on all positive activities, and focus on continuing a beautiful life. This life is a gift from God. Let's live it to the fullest. Yes, sir. Great. Yes, that's really nice. This Thank is you the for right command. rewiring my brain also. That's really nice to be on the positive Most side. welcome. अभी जब हम बात करते हैं तो कॉन्शियसली बात करते हैं, focus on the positives. That's really, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप दोबारा इस मंच पर आइए और शेयर कीजिए. इट वॉज वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन. थैंक यू वेरी मच. जरूर, आपके सारी ऑडियंस को भी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद. शुभकामनाएं. Thank you, sir. Thanks so much. Thank you. My dear friends, it was really a wonderful journey, a learning journey for us. In fact, we've got to learn a lot about depression, suicide, about alcoholism, of different facts about family problems and how couples could take care of their children, about domestic violence, everything we've discussed here, and you could take care of your life. It's all about positive thinking. It's a shift in your thought process. My dear friends, with this, we'd like to end the Fab Talk show. We'll meet you soon again. And of course, definitely, we promise you, we are going to invite Dr. Pawan Sharma once again, to have a beautiful session with us. Thank you and stay safe. Thank you, sir.